Good morning, dear students. So, in last video we have seen the proof of the convolution theorem. I told you in last lecture that the convolution theorem is very much useful for finding the inverse Laplace transform. And in today's video we are going to take the problems based on the convolution theorem. So, I have written here the convolution theorem that Laplace inverse of f of s into g of s that is equal to integral 0 to t f of u g of t minus u dt. And now we will take how to use this theorem to find the solutions of various problems. So write the first problem: find Laplace inverse of s upon s square plus a square whole square. Okay, so what we do here? We first of all consider this term s upon s square plus a square whole square, which can be written in this way, that 1 upon s square plus a square into s upon s square plus a square. Okay, and now we denote this term as f of s and this as g of s, f of s and g of s. So from this it is clear that f of s is equal to 1 upon s square plus a square and g of s is equal to s upon s square plus a square. Now what we do here, we first of all take the inverse Laplace of these two functions. We know that these are very simple functions and that's why their Laplace inverse can be easily find out. So हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा कि it can be written as f of t that is equal to, what is the inverse of this? It is 1 upon a sine of at, and if you take the inverse of this you will get g of t that is equal to cos of at. Correct? So but what we want actually, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए f of u और यहाँ पे चाहिए g of t minus u. ठीक है, तो t को रिप्लेस कर दो u से, तो क्या मिलेगा? f of u that is equal to 1 upon a sin of a u and g of, यहाँ पे t minus u चाहिए इसलिए t को रिप्लेस करेंगे t minus u से. अगर इधर कर रहे हैं t को t minus u से रिप्लेस तो इसको इधर भी करना पड़ेगा a into t minus u. इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या मिलेगा? cos of at minus au. ओके, देन बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम, देखो मैं कन्वॉल्यूशन थ्योरम यहाँ यूज कर रहा हूँ. Laplace inverse of f of s into g of s that is equal to, यहाँ लिखा है मैंने इंटीग्रल 0 to t f of u g of t minus of u du. ओके, सो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे f of s इंटू जी ऑफ एस. क्या है? f of s इंटू जी ऑफ एस इज नथिंग बट अवर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर. करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t, फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ f of u. व्हाट इज f of u? 1 अपॉन a साइन ऑफ a u and then g of t minus u is written here cos of at minus au and here it is du. चलो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इस a को तो हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, और हमको ये पता है sin a cos b का फॉर्मूला हमको पता है. तो we have sin a cos b is equal to 1 upon 2 sin of a plus b plus sin of a minus b. So we'll be using this to simplify these two. You can write here sin a cos b, sin a cos b, मतलब a की जगह पे क्या आएगा au और b की जगह पे क्या आएगा at minus au. चलो लिखते हैं यहाँ पे. So this implies Laplace inverse of s
अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन ए मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब हम ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आता है, तो वो 1/2 भी मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। सो साइन ऑफ a मतलब ए यू यहाँ पे प्लस b का मतलब होगा है ए टी माइनस ए यू प्लस साइन ऑफ अगेन a माइनस b, a इज नथिंग बट ए यू माइनस ये हो जाएगा ए टी, लेकिन ये भी माइनस है और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और इट बिकम्स ए यू इंटू डी यू। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे दिस ए यू एंड ए यू गेट कैंसल, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ साइन ऑफ ए टी रहेगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, यू के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब ये साइन ए टी इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया और यहाँ पे बचा सिर्फ u मीन्स डी यू बचेगा। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली u होगा, बराबर है, प्लस यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए यू प्लस ए यू, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए यू माइनस ए टी। ओके, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ कॉस ऑफ, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए यू माइनस ए टी, लेकिन एट द सेम टाइम ये ट्वाइस ऑफ ए यू है ना, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है उसके साथ। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे लिमिट है फ्रॉम 0 to t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to t। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने किया था विथ रिस्पेक्ट टू u, तो लिमिट भी हम u के जगह पे ही रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, आदत सी रहती है कि t के जगह पे लिमिट पुट कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है हमने विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u के जगह पे ही लिमिट रखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a साइन ए टी एज इट इज, u के जगह पे पहले अपर लिमिट में क्या आएगा, t माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ a t माइनस a t, ठीक है, अपॉन 2a, ये होगी तुम्हारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में अगर मैं u इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो साइन ऑफ ए टी इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस अगर यहाँ पे भी u के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस ऑफ ए टी होगा। बट हमको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब अगर मैंने u इज इक्वल टू 0 रखा तो भी ये कॉस ऑफ ए टी होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए टी अपॉन 2a। ओके, सो इन दिस वे द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर सब्स्टिट्यूटेड। उसके बाद क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। ठीक है, ये हो जाएगा t साइन ऑफ ए टी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2a कॉस ऑफ, यहाँ पे 80 मिलने वाला है बिकॉज 280 माइनस 80 विल बी 80, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 80 अपॉन अगेन यहाँ पे आएगा 2a, सो दिस वैल्यू विल गेट कैंसिल विद दिस वैल्यू। ठीक है, सो हमको यहाँ पे फाइनली क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a t साइन ऑफ a t। So this is the required Laplace inverse of this s upon s square plus a square. Okay, so now we will take the second problem. Okay, now I have written here the second problem. I just as I said कि मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, s के जगह पे अभी यहाँ पे s स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अगेन हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस और ये जी ऑफ एस हो जाएगा। लिख दो यहाँ पे, इसको एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे, इसको जी ऑफ एस से। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है
कि एफ ऑफ एस क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एंड जी ऑफ एस क्या होना चाहिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया हमको इसका इन्वर्स लेना है, अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी हो जाएगा, एंड इसका भी इन्वर्स लेंगे तो क्या मिलेगा, जी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे कन्वोल्यूशन थ्योरम की डिमांड है। ये बोलता है कि हमको यहाँ पे एफ ऑफ यू चाहिए और यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे यू से, तो हमको एफ ऑफ यू मिल जाएगा। यहाँ पे टी को यू से रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए यू। वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए, तो टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस यू से, तो आपको मिलेगा जी ऑफ टी माइनस यू दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, सिर्फ टी को ही रिप्लेस करना है, टी माइनस यू, सो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए टी माइनस ए यू, इसको ब्रैकेट में ले लेने का क्योंकि ये टर्म कॉस के साथ है। ओके, फिर क्या करेंगे, यूजिंग लैप्लस कन्वोल्यूशन थ्योरम, सो यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, सो लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस ऑफ यू डी यू। चलो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस मतलब कौन है, एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का मतलब है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए यू and g of t minus u is nothing but cos of at minus au into du. Again this integral is not easily solvable, हमको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेना पड़ेगा, और हमारे पास एक रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या है वो देख लेते हैं। सो वी हैव अगेन, सो cos of a cos of b that is equal to cos of a plus b plus of cos of a minus of b। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक a से डिनोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक b से डिनोट करेंगे, तो a इज इक्वल टू ए यू पुट करो, b इज इक्वल टू ए टी माइनस ए यू पुट करो, तो क्या मिलेगा, दिस एम्प्लाइज लैप्लस इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक मेरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1/2 चाहिए, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए यू प्लस ऑफ ए टी माइनस ए यू एंड प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी मीन्स क्या आएगा, ए यू माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस साइन यहाँ के हर टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए टी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे हमको मिलेगा डी यू, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया उसको, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये यू और ये यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमको मिलेगा कॉस ऑफ ए टी, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू टी cos of a t प्लस ऑफ cos ऑफ, ये हो जाएगा टॉइस ऑफ ए यू माइनस ऑफ ए टी, ठीक है, इन टू डी यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u है, इसके लिए t कांस्टेंट है तो cos ऑफ ए टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं cos ए टी का इंटीग्रेशन नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो 1 है उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि cos ए टी कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा, और du का इंटीग्रेशन होगा u प्लस, लेकिन इस फंक्शन में u है तो मुझे cos का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ, फंक्शन लिख लो टॉइस ऑफ ए यू माइनस ऑफ ए टी अपॉन, ये मल्टीप्लाई रहेगा u का मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ये आएगा, और लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक मिलने वाली है 0 टू t है। इंटीग्रेट किया है हमने विथ रिस्पेक्ट टू u, तो हम लिमिट भी u के जगह पे रखेंगे, जहाँ पे u है वहाँ पे पहले t रखो, माइनस करके जहाँ पे u है वहाँ पे 0 रखो। चलो देखते हैं क्या मिलेगा, 1/2 यहाँ पे cos ऑफ ए टी मिलेगा, u के जगह पे t आएगा तो ये t हो गया, प्लस ऑफ साइन ऑफ, यहाँ पे t के u के जगह पे t रखोगे तो टॉइस ऑफ ए टी मिलेगा, टॉइस ऑफ ए टी माइनस ए टी, सिर्फ
80 मिलने वाला है अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, जहाँ पे u है वहाँ पे पहले 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 इंटू होल टर्म विल बी 0, तो ये 0 हो जाएंगी, प्लस ये 1/2 ये लिख देता हूँ। यहाँ पे भी u की जगह पे 0 पुट करो, u की जगह पे अगर 0 पुट कर देते हो तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस ऑफ 80 हो जाएगा। बट साइन ऑफ माइनस ऑफ 80 माइनस 80 होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस ऑफ 80 क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 80 हो जाएगा, बरोबर है। तो चलो अब इसको पूरा लिख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, t इंटू कॉस ऑफ 80, ठीक है, प्लस ऑफ 1/2a साइन ऑफ 80, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/2a, फिर से साइन ऑफ 80 आएगा, ठीक है। इन दोनों की एडिशन होगी, ठीक है। सो 1/2a साइन ऑफ 80 माइनस 1/2a साइन ऑफ 80 इज नथिंग बट 1/a साइन ऑफ 80 होगा। सो 1/2 ये टर्म एज इट इज रहेंगी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलने वाला है 1/a साइन ऑफ 80, ठीक है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 1/2a, ठीक है। मैंने a को कॉमन निकाला है तो यहाँ पे रहेगा 80 cos ऑफ 80 प्लस ऑफ साइन ऑफ 80. So in this way we have obtained here the Laplace inverse of this second function, that is s square upon s square plus a square whole square, ठीक है। So I will give you one homework for you, आप प्लीज़ वहाँ पे उसको घर पे ट्राई करना। यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 करोगे यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा। जैसे आप इसका इन्वर्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/a साइन ऑफ 80, वैसे यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 1/a साइन ऑफ 80, करेक्ट। तो ये सेम हमको t को रिप्लेस करना पड़ता है u से, तो यहाँ पे मिलेगा 1/a साइन ऑफ au, और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1/a साइन ऑफ a t ऑफ u माइनस u आएगा, तो ये हो जाएगा 1/a साइन ऑफ 80 माइनस au। उसको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, 1/a साइन ऑफ au, फिर इनटू 1/a साइन ऑफ 80 माइनस au इंटू du। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपको पता है 1/a इंटू 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में 1/a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देना और यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और बाद में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बस इतना ही है। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज होमवर्क फॉर यू, ये आप लोग घर पे ट्राई करो। वी विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम करके दिया है, सेकंड कर दिया है, थर्ड आपको होमवर्क दिया है, फोर्थ प्रॉब्लम अब हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड लैप्लस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्टली ऐसा प्रॉब्लम हमारा पहला प्रॉब्लम था, सिर्फ वहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। चलो इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। अगर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको डिनोट करो f ऑफ s से और इसको डिनोट करो g ऑफ s से। सो हियर f ऑफ s इज इक्वल टू
एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/s² प्लस a² एंड जी ऑफ एस क्या है s/s² प्लस b²। अगर इसका इन्वर्स लेते हैं तो क्या मिलेगा, पता है आप लोगों को इसका इन्वर्स, ठीक है। अभी ये फोर्थ प्रॉब्लम है, आपको इजीली आ जाएगा। इट इज़ 1/a साइन ऑफ at एंड g ऑफ t इज इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है s/s² प्लस, हमने हमेशा यहाँ पे a² लिखा है, यहाँ पे b² लिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कॉस ऑफ bt होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या चाहिए, कब बोलता है कि मुझे f ऑफ u चाहिए और g ऑफ t माइनस u चाहिए, तो t को रिप्लेस कर दो u से, तो क्या मिलेगा f ऑफ u दैट इज इक्वल टू 1/a साइन ऑफ au एंड g ऑफ t माइनस u दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ b ऑफ t माइनस u। रिप्लेस हमेशा t को ही करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉस ऑफ बी टी माइनस यू लिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, कॉस ऑफ बी टी, ये जो b है ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि t को रिप्लेस करना है t माइनस यू से, ये ध्यान में रखना है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी टी माइनस ऑफ बी यू, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है हमारे पास, लैप्लस इनवर्स ऑफ f of s into g of s that is equal to integration 0 to t f of u g of t minus of u du, ठीक है। सो चलो पुट करते हैं इसमें लैप्लस इनवर्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of s into g of s, दिस इज नथिंग बट s/s² प्लस a² into s² प्लस b², एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t। f ऑफ u की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 1/a साइन ऑफ a u, और g ऑफ t माइनस u की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है कॉस ऑफ बी टी माइनस बी यू इंटू डी यू, ठीक है। चलो आगे क्या लिखते हैं, ये 1/a बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ऑफ a u कॉस ऑफ बी टी माइनस बी यू इंटू डी यू। लेकिन फिर से साइन है कॉस बी का फॉर्म हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव अगेन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, वी हैव साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। चलो अप्लाई करते हैं इसको और सॉल्व करते, इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² into s² प्लस b² एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये देखो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/a है, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ a इंटीग्रेशन 0 टू t। इसको कंपेयर करो, यहाँ पे कैपिटल A के जगह पे au है और कैपिटल B के जगह पे bt माइनस bu है, तो इसको सिस्टमेटिक लिखना है, क्या मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी मीन्स ए यू प्लस बी यू, सॉरी बी टी माइनस बी यू, बी टी माइनस बी यू, ठीक है, प्लस साइन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप में क्या है a माइनस बी, a मीन्स ए यू माइनस b का मतलब क्या होगा बी टी माइनस बी यू, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी टी प्लस ऑफ बी यू into du. So this is equal to 1/2 of a, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो u वाली टर्म्स को कलेक्ट करो, साइन ऑफ ये हो जाएगा a माइनस ऑफ b इंटू यू प्लस ऑफ बी टी, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी u वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी यू माइनस ऑफ बी टी इंटू डी यू, ठीक है, इंटू डी यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2a। इस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी ऑफ u प्लस ऑफ बी टी, ठीक है, अपॉन u का मल्टीप्लायर कौन है a माइनस बी, ठीक है,
यहाँ पे भी वैसे ही होगा प्लस ऑफ, यहाँ पे भी साइन का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस होगा। सो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू यू माइनस ऑफ बी टी, यस, अपॉन मल्टीप्लायर है ए प्लस बी, और इसकी लिमिट है 0 टू टी, इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू टी। चलो लिमिट पुट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। दोनों में माइनस साइन कॉमन है तो निकाल लो माइनस साइन कॉमन, माइनस ऑफ 1/2a, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो यू के जगह पे ही हमको लिमिट पुट करना है। इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा एक एक स्टेप करके देता हूँ। a माइनस ऑफ b ऑफ t प्लस ऑफ बी टी अपॉन a माइनस ऑफ b, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, प्लस ऑफ, क्योंकि माइनस साइन तो पहले ही हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे भी u के जगह पे t रखो, क्या मिलेगा, कॉस ऑफ a प्लस b इंटू टी माइनस ऑफ बी टी अपॉन a प्लस b। तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे देखते हैं। माइनस साइन पहले कॉमन निकाल लिया, तो अभी माइनस साइन का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जहाँ पे u दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है। जैसे ही u इज इक्वल टू 0 या पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ वी हैव टू वरीड अबाउट दिस टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो अवॉइड हो जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, अगर मैं u इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो कॉस ऑफ बी टी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे भी अगर मैं u इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ बी टी मिलेगा। लेकिन कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब माइनस साइन का कोई इस पर इफेक्ट होने वाला नहीं है, ये प्लस ऑफ कॉस ऑफ बी टी अपॉन ए प्लस बी रहने वाला है। चलो यहाँ पे देखो, ये माइनस बी टी है, ये प्लस बी टी है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस बी टी है, ये माइनस बी टी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ए टी बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2a, यहाँ पे मिलेगा कॉस ऑफ ए टी अपॉन ए माइनस बी प्लस ऑफ, यहाँ पे वैसे कॉस ऑफ ए टी अपॉन ए प्लस बी। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी टी अपॉन ए माइनस बी, और माइनस ऑफ प्लस माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसमें से अगर देखते हैं सो माइनस 1/2a, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, और चाहो एंड इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से कॉस ऑफ ए टी कॉमन निकालेंगे। जैसे कॉस ऑफ ए टी कॉमन निकालेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स ए प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, इट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस साइन, मैं जानबूझ के इसको माइनस साइन कॉमन ही निकालता हूँ और ये प्लस कर देता हूँ। यहाँ से भी कॉस ऑफ बी टी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या मिलने वाला है, a प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी प्लस बी माइनस बी इज गेटिंग कैंसल, यहाँ पे भी प्लस बी माइनस बी इज गेटिंग कैंसल, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2a। इसको थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस, इसमें भी a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a कॉस ऑफ बी टी मिलेगा।
अगर आप चाहो तो इसमें देख सकते हो कि 2a इन दोनों में है, तो 2a क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, जो इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया, इसमें से 2a कॉमन निकलेगा, जैसे ही 2a कॉमन निकलेगा वो इस 2a के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ at माइनस कॉस ऑफ bt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, or otherwise you can write here cos of bt minus cos of at upon a square plus minus of b square. So let me tell you, this is a required Laplace inverse of this s upon s square plus a square into s square plus b square.